समझ में आता है क्या गुजराती? बोले नहीं आता है, लेकिन केस हो गया, अरेस्ट हो गया। यह है आसाम पुलिस का कलंक। অসম পুলিচৰ গাত কোলা দাগ আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে আমি লজ্জিত। আৰু গুজৰাটবাসীৰ ওচৰত মই অসম পুলিচৰ এই কুকৰ্মৰ কাৰণে আমি হাত জোৰ কৰি পেলাই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে অসম পুলিচৰ এই মুৰামি, অসম পুলিচ যি ধৰণে হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, অসম পুলিচক বিজেপি আৰএছএছৰ গুণ্ডা বাহিনীলে যেনেকৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, এই কথা অসমৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি অসমৰ মানুহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হৈছে। আজি অসমৰ মাটি এৰি দি পেলাই সম্পৰ্ক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আজি গুজৰাটৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হৈছে। এজন গুজৰাটৰ সন্তান প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে 30 কোটি টকা খৰচ কৰে, আৰু এজন মানুহক কুকুৰাঝাৰ কোৰ্টত জামিন দিয়াৰ পিছত মনে সজা গোচৰত পুলিচ মহিলাগৰাকীয়ে গুজৰাটী ভাষা বুজি নাপায়, তেওঁক কোনো অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কি ভাষাত গালি পাৰিছে, কি কথা পাতিছে একো নাজানে। কিন্তু আমি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমাৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ DNA লৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰিছিল, আমি যেতিয়া দিছপুৰ থানাত কেছ দিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া অসম পুলিচে কেছ ল'বৰ কাৰণে সাহস গোটাব কিয় নোৱাৰিলে? যেতিয়া আমি দিছপুৰ থানাত কেছ দিবলৈ গৈছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, তেতিয়া পুলিচ ক'ত আছিলে? কেছ ল'বলৈ সাহস কিয় নকৰে? আৰএছএছৰ এটা টেলিফোনত যদি অসম পুলিচ নিয়ন্ত্ৰিত হয়, এজন বিধায়ক যদি গুজৰাটৰ পৰা এনেকৈ ৰাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনে, তে অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ ভৱিষ্যত কি? অসমৰ সাধাৰণ মানুহে পুলিচে ভয় খাব বিচাৰিছে নেকি? আমি পুলিচক ভয় নাখাওঁ। আমি ব্ৰিটিছৰ পুলিচক ভয় খোৱা নাছিলোঁ। আমি অসমৰ পুলিচক ভয় নকৰোঁ। আমি অসমৰ পুলিচক সন্মান কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু অসম পুলিচৰ সন্মান কেইজনমান মতলবী পুলিচ বিষয়াই আজি ধূলিৰ লগত মিলাই দিলে। এই কথাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব। আমাৰ বৰপেটাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশে যি আহ্বান জনাইছে যে হাইকোৰ্টে চৌমতো কেছ ল'ব লাগে, পুলিচৰ পদমৰ্যাদা, পুলিচৰ আত্মসন্মান, পুলিচৰ স্বাভিমান স্খলিত হৈ অসমক পুলিচ ৰাজ কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ন্যায়াধীশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই যি আৱাজ, যি পথ নিৰ্দেশনা ভাৰতবৰ্ষক দেখুৱাইছে, আমি ইয়াৰ পৰা তেওঁ শত শত কোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আমি কোটি কোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যে এতিয়াও অসমত ন্যায় ব্যৱস্থা জীয়াই আছে। এতিয়াও অসমত সেইসকল ন্যায়াধীশ জীয়াই আছে যি ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে, যিয়ে সত্য হিচাপে, যিয়ে শক্তি হিচাপে ৰাইজৰ মনত ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ বিশ্বাস জগাবৰ কাৰণে বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আমি তেওঁক চেলুট দিছোঁ। আৰু এইসকল ন্যায়াধীশৰ যি পথ নিৰ্দেশনা, সেই পথ নিৰ্দেশনাত কংগ্ৰেছ দল চলিব। অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে যদি বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ প্ৰস্তাৱৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি চৌমতো কেছ লৈ এনকুৱাৰী নকৰে, তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সেই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে এনকুৱাৰী বিচাৰি আমি আইনগতভাৱে য'লৈকে যাব লাগে আমি তালৈকে যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। अभी मैं जिग्नेश मेघानी जी को उसका दिल का 2-4 बात बोलने के लिए निवेदन करता हूं, और मैं आपका तरफ से, आपका माध्यम से मैं गुजरातवासी को, आसाम पुलिस ने जो बर्बर काम किया, आसाम पुलिस ने अपना खाकी पोशाक में जो काला दाग लगाया, आपको बिना कारण एक महिला पुलिस को बेइज्जती करने का जो आपका खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, इसके लिए मैं गुजरातवासी को, मैं आसाम कांग्रेस का तरफ से, आसाम वासी का तरफ से मैं माफी मांगता हूं, और मैं आपको 2 शब्द बोलने के लिए निवेदन करता हूं। थैंक यू। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में, हिंदी में। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग फांसीवादी हैं। ये लोग गॉडसे और हिटलर की विचारधारा में मानते हैं, और इसीलिए आरएसएस के लोग पहले कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। हमें मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं। ये विचारधारा के लोग जब सत्ता पर आए हैं, उनका हर एक तरीके से यही प्रयास है
कि सारी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं को खत्म किया जाए। हर जगह पे जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो भी सड़क पर उतरा है, जो भी आंदोलन कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, जो भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलेगा उसको क्रश कर दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। ये उनका माइंडसेट है। उसी माइंडसेट के चलते मैं मान रहा हूं कि मेरे खिलाफ ये 2 फर्जी फॉल्स एफआईआर किए गए। सवाल ये हो रहा है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आसाम की जनता को कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को क्या कारण है कि गुजरात के किसी नेता की गिरफ्तारी करके उसको आसाम में लेकर आए। क्या उससे आसाम का जो बिजली का सवाल है वो रिजोल्व होगा? क्या उससे आसाम में जो बेरोजगार यूथ है उसकी बेरोजगारी का सवाल रिजोल्व होगा? क्या आसाम के किसान और मजदूर के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा गुजरात के किसी एमएलए की गिरफ्तारी करने से? तो सवाल यह है कि अचानक एक दिन आसाम पुलिस बैठी थी और उसको मन किया, सपना आया कि गुजरात जाकर उस जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करे। नहीं, आसाम पुलिस को, आसाम सरकार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से यह मार्गदर्शन मिला है। इंस्ट्रक्शंस have come from PMO, nothing less than that, to Assam government and to Assam police, go and arrest जिग्नेश मेवानी। पूरा ये कॉन्स्पिरेसी है। मैंने जो ट्वीट किया, मैं आज भी मानता हूं उस ट्वीट की कंटेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में 2-3 पॉकेट में जहां पर कम्युनल क्लैशेस हुए, जहां पर कम्युनल वायलेंस हुआ, तो मैं मानता हूं एक नागरिक के तौर पे, एक एमएलए के तौर पे मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि खुद पीस और हार्मनी का अपील करूं। और यही मैं चाहता हूं कि जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में बैठा है, वो सारे लोगों का यही अपील होना चाहिए। तो जब गुजरात में मोदी जी आ रहे थे, वो भी गुजरात से है, कम्युनल क्लेशिस भी गुजरात में हुए, तो मैंने उनको ट्वीट के माध्यम से केवल इतना अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। वो अपील नहीं की है। वो शांति और अमन की राजनीति में नहीं मानते, वो हिंसा और नफरत की राजनीति में मानते हैं। और आसाम पुलिस भली भांति जानती है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। मेरे खिलाफ ट्वीट का जो कंटेंट है उसमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके चलते मेरे खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, मोदी जी ने कहा है, इसलिए मेरे खिलाफ ये एफआईआर किया है। और न केवल एक एफआईआर, आप एफआईआर करते हो, रिमांड मांगते हो, 14 दिन का रिमांड किसके लिए? एक ट्वीट करने के लिए। फिर दूसरा एफआईआर, और दूसरा एफआईआर कुछ नहीं, कायरता का प्रतीक है। आप एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर दबाव बनाकर, छोटा कर्मचारी है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई ऐसा कुछ होगा, उस महिला पुलिसकर्मी के ऊपर प्रेशर बनाकर इतनी कायरता दिखा रहे हो। मेरे खिलाफ आपको दूसरा केस करना था, मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, इंप्लीकेट मीन समथिंग एल्स, और कुछ केस करते। किसी महिला को आगे करना और उसके जरिए किसी एमएलए के ऊपर जो दूसरे स्टेट का है यहां पर एफआईआर करके यहां उसकी गिरफ्तारी करवाना, ये कितनी बुजदिली है। ये बुजदिल और कायर लोगों का ही काम है। ये वही बुजदिल और कायर लोग हैं जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये वही बुजदिल और कायर लोग हैं जो हमारे राष्ट्रध्वज का, तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी जी को और यहां की सरकार को, आप मेरे स्पिरिट को, मेरे हौसले को खत्म करना चाहते थे ना, मेरे स्पिरिट को, मेरे हौसले को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप चाहे तो और 2 एफआईआर का प्रयोग करके देख लीजिए, मैं अपनी जगह से 1 इंच हिलने वाला नहीं। और कल जिस प्रकार से कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए, वो सब कुछ कहता है। मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, तो एक तरीके से मुझे जो विक्टिमाइज किया है तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन कोर्ट ने, जुडिशरी ने जो कहा है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जुडिशरी ने
साफ शब्दों में ये कहा है कि जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ कोई एफआईआर बनता नहीं। मेरे खिलाफ जो एफआईआर किया है वो मेंटेनेबल नहीं है। न केवल इतना, कोर्ट ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मैलाफाइड इंटेंशन के चलते गैर कानूनी तौर पे मुझे डिटेन करके रखने के लिए ही ये एफआईआर किया गया है। तो मुझे सवाल ये पूछना है आसाम की सरकार को, आसाम के मुख्यमंत्री को, आसाम की पुलिस को, आप इतना गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? किसके इशारों पे कर रहे हैं? अपॉन हुज इंस्ट्रक्शंस, विथ व्हाट मोटिव? आपका इंटेंशन क्या है? इसके चलते आप अचीव क्या करोगे? मेरे ऊपर, किसी दूसरे स्टेट के एमएलए के ऊपर एफआईआर करने से आसाम की जनता को क्या मिलेगा? आसाम के किसान को, मजदूर को, आसाम की बहनों को, आसाम का जो बेरोजगारी यूथ है उसको क्या मिलेगा? उसके लिए कुछ करिए ना। तो मोदी जी के इशारों पर नाचना बंद करिए, वो आपको भी ले डूबेगी एक दिन, ये मैं कहना चाहता हूं। और आसाम में जिस प्रकार से कोर्ट को कहना पड़ा कि धीरे धीरे आसाम एक पुलिस स्टेट बन रहा है, यहां पर रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस साइन है। मेरे खिलाफ तो 1-2 केस हुआ, अभी बेल मिल गया, मैं तो चला जाऊंगा। आसाम की जनता का क्या होगा? आसाम के पत्रकारों का क्या होगा जो सवाल पूछेंगे? आसाम के मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे? आसाम के अंदर जो भी छोटा इंसान इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके पास यही मैसेज है कि हम गुजरात के दूसरे स्टेट के एमएलए को नहीं छोड़ रहे, तुमको भी क्रश कर देंगे। यही मैसेज आसाम की सरकार और पुलिस देना चाहती है। मैं यह मानता हूं ये दोनों एफआईआर मेरे खिलाफ जो हुए और जिस प्रकार से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आसाम में चल रहा है वो और कुछ नहीं, इट इज ब्लाटेंट डिसरिगार्ड टू अवर रूल ऑफ लॉ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का अपमान है। लेकिन जैसा कि हमारे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे भूपेन कुमार बोरा साहब ने और पार्टी के सारे साथियों ने बताया, कांग्रेस पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है, कितना भी जुल्म हो हम लोग अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको जो करना हो, जिस स्टेट में करना हो और एफआईआर करना हो, आप प्रयोग करके देख लीजिए, मैं हिलने वाला नहीं हूं। यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ साथ जिस प्रकार से भूपेन कुमार बोरा साहब, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, जिस प्रकार से सॉलिड तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी रही, भगवती साहब जो हमारे वकील है, कोंकण दास जी, साइकिया जी, अंशुमन बोहरा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, किसान कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, बारपेटा और कोकराझार के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, वो दूसरे नेता जिनको मैं नाम से नहीं पहचानता हूं, लेकिन जो सॉलिड तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, आई एम ग्रेटफुल टू देम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनको ये भी गारंटी कह रहा हूं कि आप जिस प्रकार से कहे कि गुजरात की जनता को मैं माफी मांगता हूं, हमारे मन में बतौर गुजराती कोई गिला शिकवा नहीं। मैं आसाम की जनता को लेकर अपने दिल में बहुत प्यार रखता हूं। आसाम का जो डाइवर्सिटी है, यहाँ का जो मल्टीकल्चरिज्म है, उसको मैं सेलिब्रेट करता हूं। ये कोई हिमंत बिस्व शर्मा का आसाम नहीं, ये महापुरुष शंकर देव का आसाम है और उसी ट्रेडिशन को हम लोगों को आगे लेके जाना है। उसी ट्रेडिशन को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मेरे साथ खड़ी रही, पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स जिस प्रकार से मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। सारे पत्रकार साथियों ने भी समर्थन किया और आसाम पुलिस का जो छोटा कर्मचारी था ना, वो भी जेल में हमारे लिए सिंपैथी रख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे 1-2 एफआईआर से हमारे पेट का पानी हिलने वाला नहीं। तो मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस समझ ले, ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप कितना भी कोशिश करो, यहां मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। और मैं आखिर में आसाम की जनता को केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी आसाम में रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, हम सबको साथ में मिलकर रहना है। यदि हम लोग इतना कर देंगे तो हमारी जीत होगी। इतना आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। आपके कोई सवाल है?
So I have absolutely nothing to hide. Anything under the sky can be asked to me. I am available. কোট কিয় কেতিয়া কেনেকৈ দুৰ্নীতি অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো নারী নির্যাতন ড্রাগস ব্যৱসায় একক নায়কত্ববাদ অত্যাচাৰ কিন্তু আৰু নহ'ব এতিয়াৰে পৰা আমি দিম শুদ্ধ বাতৰি নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে পক্ষপাত নহয়